नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश नंदन। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता, वित्त मंत्री ने बजट में की कई घोषणाएं। बजट पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यात्रा खत्म कर लौटेंगे तब इस बारे में डिटेल से जानेंगे। यह बजट किसानों और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दिया बयान। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बड़ा ऐलान किया है। इनकम टैक्स में 8 साल के बाद बड़ी राहत दी गई। अगले वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए नए टैक्स रिजीम चुनते हैं तो टैक्स रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपये हो गई है। पहले यह 5 लाख रुपये थी, लेकिन आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हुई तो आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बोली है कि 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। For large scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि अब पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता होगी। विशिष्ट सरकारी एजेंसी की सभी डिजिटल प्रणाली के लिए सामान्य पहचानकर्ता के लिए पैन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी एजेंसी के व्यवसाय के लिए पैन का उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के तौर पर किया जाएगा। गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। उन्होंने कहा पूंजी निवेश परिव्यय 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। MSME को भी राहत दी गई है। The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022.
The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy. नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बजट किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। प्रधानमंत्री ने जो पहल किया वह काफी सराहनीय कदम है। लघु सीमांत किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो 2/3 युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है। और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसकी जरूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय सकारात्मक बजट है। वहीं जदयू मंत्री श्रवण कुमार ने बजट को लेकर कहा कि लगातार बिहार की उपेक्षा हो रही है। सभी योजनाओं में केंद्र बिहार की कटौती कर रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की उपेक्षा यहाँ के लोग बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। इसका जवाब 2024 के चुनाव में मिलेगा। अभी तो जो जन सुनवाई कार्यक्रम में कागज मिल रहे हैं उसी को देख रहे हैं। आप लोगों से विदा जब लेंगे यहाँ से और तब जाके उसको सुनेंगे, समझेंगे, तब उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लगातार बिहार की उपेक्षा हो रही है और बिहार के जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में ससमय पैसा भी नहीं आता है। और बिहार की तरक्की की बात जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं तो शायद दिल्ली वाले को अच्छा नहीं लगता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका हर दिन हर अखबार में बयान रहता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार तो दिनों दिन कटौती करते जा रही है सभी योजनाओं में। और बिहार की तरक्की तो अपने बलबूते जितना हो सकता है हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सरकार में भी है। जब हम जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करते हैं तो हाथ खड़े कर देते हैं। जब विशेष राज्य का दर्जा का सवाल उठाते हैं तो हाथ खड़ा कर देते हैं। जब पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगते हैं तब हाथ खड़ा करते हैं। तो जितना समस्या है उसके हल के लिए जब हम कोई पहल करते हैं तो उसमें उनको दिलचस्पी नहीं है और वो विशेष तौर पर बिहार के लिए रुचि नहीं लेते हैं। इसी से अंदाज़ा लगता है कि बिहार की उपेक्षा लगातार ये कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये उपेक्षा किसी भी कीमत पर बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाला 2024 का जो चुनाव है इसमें इसका खामियाजा दिल्ली में बैठे लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन मांग लगातार आप लोग तरफ से उठ रही थी, इस बार भी बजट में कहीं दिख नहीं रहा। नहीं, हम तो कहा कि बजट अभी देखे नहीं है, देखेंगे तब कहेंगे। लेकिन हम तो जो सवाल खड़ा करते हैं, जो बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए जो हम बात रखते हैं, उसमें भारत सरकार में बैठे लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। और जब दिलचस्पी नहीं है तो निश्चित रूप से बिहार की उपेक्षा करते हैं। युवाओं की तरफ ज़्यादा इस बजट में ध्यान दिया गया है।
डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात कही गई है। नहीं, वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बात को चलाएंगे और हमेशा चलाते रहते हैं। जब 2-2 करोड़ नौकरी वो दे रहे थे और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो कहे तो जुमला था। तो उसी तरह के जो काम वो कर रहे हैं वो तो सब जुमला की तरह बात आगे रख रहे हैं। तो उनका जो काम है वो देश को बनाने वाला नहीं है, देश को तोड़ने वाला है, देश में नफरत फैलाने वाला है। और अब देश में नफरत फैलाने वाले का इतिहास बंद होने वाला है और देश में आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा का इतिहास शुरू होने वाला है। विभाग का बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना का 66% बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, प्रधानमंत्री का अलग से न देंगे। आज 14,000 करोड़ मनरेगा का जो बकाया है नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल में है। यात्रा की वजह से केंद्रीय बजट को देख सुन नहीं सके, लिहाजा बजट के बारे में उन्होंने बताया कि हमें कोई जानकारी नहीं है। पत्रकारों ने जब बजट पर मुख्यमंत्री से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो नीतीश कुमार ने कहा कि यात्रा खत्म कर लौटेंगे तब इस बारे में डिटेल से जानेंगे। लगे हाथ उन्होंने वित्त मंत्री विजय चौधरी को भी बुलाया और पूछा कि आप जो मीटिंग में कहे थे तो कुछ मिला कि नहीं, जिस पर विजय चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि एक भी चीज़ नहीं मिली। ये गांव पूरी तरह से विलीन हो गया था, उसको पुनर्वासित इसका स्वरूप आपने इसका मुआयना किया? हाँ, तो इसलिए तो देखने आ गए। पहले जो कुछ भी हुआ था तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि 8 में जितना सब कुछ हुआ था। अब उसके बाद तो सब कुछ कैसे करना है, कितना करना है, तो वो सब किया गया है। अभी कुछ कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन उसी सिलसिले में तो अभी जो हम इस बार घूम रहे हैं तो यही है कि जो काम हुआ उसको देखने के लिए, और कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए, या फिर लोगों की कोई इच्छा जानने के लिए, और ये भी देखने के लिए कि और जैसे कैसे लोगों को सुविधा बढ़े, विकास हो, ये सब को देख करके। आप देख रहे हैं ना आप लोग सब जगह जो हम बना दिए जीविका दीदियों का, तब देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। अब पढ़ाई वढ़ाई भी देखिए, अब स्कूल के बच्चों को देखिए, अभी सब अंग्रेजी में बोल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो कोई बिहार को ठीक से जान नहीं रहा है बाहर। यहाँ इतना जो हम लोग शुरू से काम करवाए हैं ताकि सबका ज्ञान बढ़े एक एक चीज़ के बारे में, तो सब चीज़ देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आज केंद्र में बजट भी पेश हो रहा है। नहीं, एक्चुअली हम हर बार देखते थे, लेकिन इस बार चूँकि हमारा दौरा पहले से तय था इसलिए हम देख नहीं पाए। हम तो लौटेंगे तब हम एक एक चीज़ को देखेंगे, तभी तो हम इसमें घूम रहे हैं। इसलिए नहीं तो हम हर बार सुनते ही थे। ये मेरी शुरू से आदत है, जब से हम MP थे तो अंदर रहते थे, लेकिन उसके बाद भी जब हम यहाँ रहे, कोई भी सरकार थी, हम जरूर उनका सुनते थे, जरूर देखते थे। हम लास्ट ईयर तक पूरा सुने। अब इस बार भी हम सुनते, लेकिन चूँकि पहले से तय था ये कार्यक्रम, तब करेंगे, कैसे छोड़ दें। क्योंकि ये सब तो पहले नहीं मालूम था कि कब होगा, बाद में ना मालूम होगा, और तय था मेरा पहले से। तब हम लौट के जाएंगे तो हम सबसे पहले उनको झोली तो मिलेगा क्या? बिहार की झोली आपको जाएगा? हमको नहीं पता है अभी, वो तो मालूम ही हो जाएगा। जब हम घूम रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ लोग खबर करेंगे, लेकिन अभी तो हम घूम रहे हैं, अभी तो किसी की बातचीत होती नहीं है। कुछ उम्मीदें हैं समूचा कार्यक्रम कर लेंगे और जब लौटने लगे तो उसी समय न कोई कुछ कहीं से शंख चुनकर। बिहार के लिए कुछ उम्मीदें भी रखते हैं सर? अरे हम लोगों को तो जितना कहना जाके कह ही दिए हैं, सब मीटिंग में कह दिए हैं। कहाँ गए सिद्धार्थ तो है ये है। अरे सुनिए, आइए ना। तो जो चाह रहे थे केंद्र के बजट, तो आप लोग तो मीटिंग में गए हुए हैं ना? हाँ, हम लोग तो मीटिंग में जाके गए। अभी तक जो आया है उसमें बिहार के लोगों की अपेक्षा या सरकार जो चाहती है, जो बताया है, एक भी चीज उन्होंने नहीं कहा। अभी सुन रहे होंगे। सुपौल में समाधान यात्रा के दौरान जीविका दीदी से बिहार के CM मिले। हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, अब उससे ज़्यादा जीविका समूहों का गठन हो गया है। बिहार में समूह से 1 करोड़ 27 लाख महिला जुड़ी हुई है। जीविका समूह के माध्यम से अधिक काम करवाइए। महिलाओं को उद्योग के प्रति प्रेरित करने का काम भी किया जा रहा है। आप सभी अपनी जिम्मेवारी ठीक ढंग से निभाए, समाज में प्रेम भाईचारा का भाव कायम रहे, इसके लिए लोगों को प्रेरित भी करते रहे। कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था और रहा है आज भी, लेकिन जब यहां काम करने का मौका मिला और जब हम उसके पहले MP थे या केंद्र में मंत्री भी रहे हैं,
तो उन दिनों कहीं कहीं घूमते थे तो जानते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन जब बिहार में देखते थे कि बहुत कम। लेकिन 2005 के 14 नवंबर से जब हमको काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ बहुत कम है स्वयं सहायता समूह की संख्याएं। और फिर कई लोगों से हम 2016 में मिले भी और सबसे बात करते रहे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमको लगा कि नहीं, इनको और ज्यादा बेहतर ढंग से इनको मौका मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमने कहा कि भाई हम बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह का गठन करें और हमने उस समय तय कर दिया कि कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह हम कम से कम बनाएंगे। और उसी समय जब इसको करना शुरू किया और स्वयं सहायता समूह के लिए लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग देना, उनको सुविधा देना और कौन कौन चीज वो काम करेंगी तो उनके परिवार की स्थिति अच्छी होगी, बहुत कुछ जानेंगी, ये काम जो शुरू कराया हम लोगों ने 6 में, तो इसकी शुरुआत किया उसी समय हमने ये तय कर दिया कि भाई जो स्वयं सहायता समूह के साथ जो महिलाएं जुड़ेगी उनको हम जीविका दीदी कहेंगे। जीविका का नामकरण मैंने किया। अब तो अब जीविका का शुरू हो गया, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ने लगी और हम बहुत जगह कहते रहते थे अपने अधिकारियों को वे संख्या बढ़ाइए, ये करिए, हम कोशिश में लगे रहे। और इसके लिए कहां से बाहर से हम लोगों को ऋण लेना पड़ा था कि भाई इसको तेजी से हम काम कराए, होने लगा। और उसके बाद जहां जहां बन रहा था वहां हम जाकर के जीविका दीदियों से मिलते थे, मुझको कितनी खुशी होती थी। अब उसी सिलसिले में जो बिहार में स्वयं सहायता समूह का बेहतर काम होने लगा और जीविका दीदियां कहलाने लगी, तो उस समय की केंद्र सरकार जो थी, आज वाली केंद्र सरकार नहीं, भ्रम में मत रहिएगा, उस समय की केंद्र सरकार जो थी उसी के मंत्री और सब आए यहां बिहार और कहे कि भाई हम लोग तो सुने हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा करवाए हैं यहां पर। हम कहा तो उसके बाद जीविका दीदियों से भी कुछ जगह पर और देख करके कहा कि यहां पर स्वयं सहायता समूह का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और नामकरण हमको उन लोगों ने कहा कि आपने जीविका दीदियां कह दी है। उसके बाद उसने तय किया कि बहुत अच्छा काम है और उसी समय देश भर में जो स्वयं सहायता समूह का के साथ जोड़ दिया आजीविका। बिहार में जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका नाम दिया। तो भ्रम में कभी मत रहिएगा, असली है जीविका। और उन लोगों ने कहा कि भाई हम जीविका कर दिए तो हम कैसे कहें जीविका सब जगह, तो आज जीविका कर दिया। तो आप जरा सोच लीजिए। और जो जीविका दीदियां यहां थी, कितनी जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में भी जाकर के ट्रेनिंग में गई, तो बड़ी खुशी की बात है। और उसका हम संख्या बढ़ाते रहे, देखते रहे। अब तो खुशी की बात है कि अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया। हम तो 10 लाख किए थे, अब 10 लाख से भी संख्या। और आप समझ रहे हैं जीविका दीदियों की संख्या अब कितनी हो गई? 1,30,00,000 से ज्यादा अब जीविका दीदियां हो गई। और अब जो किसी भी काम में हम चलते हैं पहले से ही, शुरू से ही, और कोरोना के दौर में भी आप लोगों के बीच से लोगों ने काम किया। किस काम? हर जगह काम किया। मास्क कितना बनाए हम लोग ही, तो देखिए ना, मास्क उसको पहनते थे। आप लोग मास्क अपने से बहुत लोग बनाते रहते। खैर इतना काम किया आप लोगों ने, हर जगह जो कुछ भी मौका होता था। ये तो इधर की बात हम कह रहे हैं, लेकिन शुरू से सोच लीजिए, 6 के बाद से ही जो काम करना शुरू किया और इतना अच्छा सब लोगों ने काम करना शुरू किया और कितनी लोगों को जानकारी होने लगी, तो सब खुशी थी। और अब तो हम तो चाहते ही तो संख्या बढ़ जाए, अब संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि संख्या और बढ़े। और जा करके हम देखते रहते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से जीविका दीदियों ने कहीं कोई काम किया है उसको देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। और जीविका दीदियों की बात सुनते हैं और इतनी मुझको प्रसन्नता होती है। तो हमेशा जब से हम लोगों ने शुरू किया तब से न सिर्फ जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाना बल्कि उनकी आमदनी को बढ़ाना। आज जीविका दीदियों का काम क्यों करवाया महिलाओं के लिए, आप बताइए। पहले तो
साधारण परिवार में तो खाली मर्द थोड़ा बहुत जो भी कर सकता था करता था, महिलाओं को तो कोई काम नहीं देता था और बेचारी घर का काम देखती थी और कभी कभी खेत उत में भी चली जाती थी, लेकिन उनको कोई काम नहीं था। लेकिन जब हमको लगा कि जब महिलाएं काम करेंगी, आज जीविका दीदियां बनना शुरू, अब देखिए कितनी महिलाएं काम कर रही, और हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए आप जानते ही ना है, हमको तो लगा खाली मर्द काम करेगा, और जब महिला काम करेगी और सब मिल के काम करेगी तो कितना आगे बढ़ेगा परिवार। अब उसी में परिवार आगे बढ़ने लगा। मधुबनी के कलवाही में रामगढ़ गांव में दलित दंपति जघन्य हत्याकांड के अन्य आरोपित को विलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में माले नेताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला है, तो वहीं पीड़ित परिवार को सभी सरकारी सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने व पीड़ित परिवार सहित सभी दलित गरीबों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर के प्रखंड मुख्यालय के अम्बेडकर चौक से सैकड़ों भाकपा माले कार्यकर्ता ने प्रतिवाद मार्च निकालकर नारेबाजी किया। अपराधी पर रोक लगाना होगा, अपराधी पर रोक लगाना होगा। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म नहीं है डूब मरो, शर्म नहीं है डूब मरो। पुलिस प्रशासन एक कलयुगी पुत्र ने अपनी ही मां की मारपीट कर हत्या कर दी है। बताया जाता है कि पुत्र नंदलाल राम अपनी मां से पैसे मांग रहा था। जब मां ने पैसे देने से इनकार किया तो मां के साथ मारपीट कर दी। सूचना पर गांव के लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लांजी की है ये लोग। हाँ, इनका लड़का का नाम है नंदलाल राम। हाँ, लड़का का नाम नंदलाल राम है। वो अपने मम्मी से पैसा मांग रहा था। पैसा नहीं दी, इसी के कारण उसने उसको मारपीट कर दिया और मारपीट करके घायल कर दिया। उसको इलाज करने के लिए लाए हम लोग। इलाज करने के लिए सासाराम लाए। सासाराम से मतलब रेफर कर दिए। रेफर किए तो ले जाने दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के क्रम में उनका मौत हो गया। मधुबनी के मधवापुर प्रखंड के साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुखियापट्टी गांव में किराए के एक मकान में हथियार के साथ अपराध की योजना बनाते 4 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा दबोचा गया युवक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार यादव विजय मंडल के तौर पर किया है। एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह देसी कट्टा के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। बताएं सर, क्या मामला है? कल दिनांक 30/1/23 को थाना को सूचना मिला कि कुछ अपराधी जो मुखियापट्टी में किराए के मकान लेके और अपराध ही करते हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार कौनी परिसमान अब समाप्त हो गए हैं। अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार, शौनी अनिल कुमार और हमारा हवलदार सिपाही जो बल हैं हमारे अथी के सशस्त्र बल के, ये लोग गए छापामारी में किए तो एक देखें पिस्टल बरामद हुआ है उसके पास से। ये लोग इसमें ये जेल के गए। ये ललित कुमार पूर्व में जेल भी गया हुआ है। ललित कुमार यादव। नाम क्या सब है सर? एक ललित कुमार यादव है, पिता राम कुमार यादव। कहाँ के? ये देवड़ी के हैं, थाना बेनीपट्टी। हाँ, देवड़ी के हैं। एक सरोज कुमार मंडल, पिता जीवस मंडल, ये देवड़ी का है। उसके बाद जीतू गिरी, पेथर राम जन्मगिरी, और एक रोशन कुमार, राम प्रबोध ठाकुर, ये बसबरिया थाना साहरघाट के। दोनों लास्ट का दोनों? हाँ, दोनों साहरघाट पे बसबरिया का है। ये लोग के शराब धंधा के सहयोगी हैं, एक साथ पकड़ा है। अच्छा, देवड़ी का आपने नाम लिया सर, वहाँ पहले भी आपराधिक घटनाएं हो चुकी है, हत्या भी हुई है वहाँ। तो क्या उस कांड से इसको जोड़ के देखा जा रहा है क्या? अब अनुसंधान विषय पूछताछ होगा, अनुसंधान में है अपराधी का भी। और क्या सब बरामद हुआ सर? एक पिस्टल बरामद हुआ है
और मोबाइल वगैरह भी? हाँ, मोबाइल भी है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। 4 मोबाइल है, 2 मोटरसाइकिल है, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। किसका है तत्पश्चात अनुसंधान में होगा, अनुसंधान में आएगा तो जिसका होगा। पुलिस को सूचना किसी ने दी? गुप्त सूचना है? गुप्त सूचना। क्या कुछ इन लोगों का प्लानिंग था? प्लानिंग तो अपराधी है, तो अपराध का तो जब मन हो तो अपराध कर लो। कहीं से चर्चा थी कि ये लोग किसी लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे, ऐसा कुछ है? ऐसी कुछ सूचना थी? अपराधी तत्व है तो कुछ सुविधा अनुसार ये लोग कार्य करता है। जब सुविधा हो क्राइम, ये लोग कहा कि हम शराब ब्लॉक मोटरसाइकिल भी छीन लिए हैं, जो कि बरामद नहीं हो सका, उसका भी बरामदी का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, इस सब का आपराधिक इतिहास क्या है सर? आपराधिक इतिहास इसमें पता किया जा रहा है, अन्य थाना से भी पूछताछ किया जा रहा है, पता करके तब आपको बताएंगे आगे क्या कार्रवाई किया जाएगा सर। रिमांड ये लोग जा रहे हैं, माननीय न्यायालय के पास जा रहे हैं, माननीय न्यायालय के अनुसार जहाँ जाए। फिलहाल आज के खंड में तैयार, आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।